Myself, Dr. Raval Kavit Harshid Rai, Assistant Professor at Rameshwaram Institute of Technology and Management, Lucknow. So today we are going to study about pharmaceutical calculations. Part 1, weights and measures, calculations involving percentage solutions and alligation. So why we need pharmaceutical calculations? First of all, as a pharmacist we have to formulate dosage forms like tablet, capsules and other liquid dosage forms as well, and that we have to weigh and measure the amount of specific quantity of that particular uh, active pharmaceutical ingredient as well as excipients, and then we have to mix them and have to make the dosage form. So in that we need to have this pharmaceutical calculations, and for this pharmaceutical calculations, first of all we have to understand about the metrology, which is the science which deals with weights and measures. So we have two types of system in this metrology, the imperial system and the metric system. The imperial system, it's an old system, और यू कैन से बहुत पुराना सिस्टम है ये. जब ग्रीक और लेटिन जो ग्रीस के लोग थे वो लोग जब फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी की प्रैक्टिस करते थे तब इस टेक्निक को यूज़ करते थे. सो इट्स एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. Weight is a measurement of gravitational force which is acting on a body and it is proportional to its mass. The imperial system is divided into two parts here. First one is Avoirdupois system and second one is apothecary system. So these words are from Latin terminology. Now in Avoirdupois system, the standard unit of weight is pound, and this pound is generally abbreviated as LB. So you must know this, that in this system the pound is the standard unit for weight and it is also abbreviated as LB. So 1 pound is equal to 16 OZ. Here the OZ means ounce or ounces, and this avoid means in Avoirdupois system, because we have two types of system like Avoirdupois system and apothecary system. So this indicates that this measurement is taken as according to the Avoirdupois system, and 1 pound is equal to 7,000 grains. Now the 1 ounce in Avoirdupois system is equal to 7,000 divided by 16, so that we can get the final formula that 1 ounce Avoirdupois is equal to 437.5 grains. So by this equation we can easily transform the units of 1 ounce or fluid ounce in 437.5 grains. It means we can convert from ounce to grains easily by using this formula. Now the apothecary system. Here the grain is the standard unit of weight, and 20 grains are equal to 1 scruple, 60 grains equals to 1 dram, 437.5 grains is equal to 1 ounce. This is the same as in Avoirdupois system. So we have to note that 8 dram is equal to 1 ounce. So why we need to understand this kind of conversion and this terminologies? Because जब हम पुराने ज़माने में जो फार्मासिस्ट होते थे तो तब जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होते थे वो लेटिन टर्मिनोलॉजीज़ में होते थे और ग्रीक वर्ड्स के बेस पे थे. तो हमें इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और उस टर्मिनोलॉजीज़ को समझ के जो प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको हम समझते थे, फिर अपनी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन लगा के एज अ फार्मासिस्ट हम एक अपना डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते थे और उसको डिस्पेंस करते थे. तो उस टाइम पे अगर एज अ फार्मासिस्ट हमारे पास ये नॉलेज नहीं है कि हमें इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है और कैसे कैलकुलेट करके डोजेस फॉर्म बनाना है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है. दैट्स वाई वी हैव टू हैव दिस नॉलेज. नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इम्पीरियल सिस्टम. इम्पीरियल सिस्टम में वेट्स के साथ साथ कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम्स को मेज़र करने के लिए भी
डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट है. So in both the system, Avoirdupois system as well as apothecary system, here the standard unit is gallon. In term when we talk about weights, जब weights की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए different standard unit थे. Avoirdupois system में it was pound, while in apothecary system it was grain. जबकि यहाँ पे जब हम measurement करते हैं volume or you can say capacity, उस टाइम पे द स्टैंडर्ड यूनिट इन बोथ द सिस्टम Avoirdupois एज वेल एज apothecary सिस्टम इट इज 1 gallon. मीन्स gallon इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वॉल्यूम इन बोथ द सिस्टम्स. 1 gallon is equal to 160 fluid ounces and 1/4 of a gallon which is equal to 1 quart. It is generally termed as quart because it is 1/4 part of a gallon. Then 1/8 of a gallon is called 1 pint and 1 divided by 1/60th, or you can say 1/60th part of a gallon is called as 1 fluid ounce, and 1/8 of a fluid ounce is equal to 1 fluid dram. So this is the formula for conversion of volumes from larger unit to smaller units and in different units, right? अब हम मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे. तो मैट्रिक सिस्टम क्या होती है? मैट्रिक सिस्टम वो सिस्टम है जो अभी के करंट सिनारियो में हम यूज़ करते हैं. आज से 100-200 साल पहले हम ग्रीक और लैटिन वर्ड्स को यूज़ करते थे. उस टाइम पे इम्पीरियल सिस्टम को यूज़ करते थे, जो हमने आगे देखी. लेकिन जब जैसे जैसे साइंस का एवोल्यूशन हुआ तो हमने सिंपलर फॉर्म में कैलकुलेशन करने के लिए मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया. और जैसे हमने मैट्रिक सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, so the metric system is used in the Indian pharmacopoeia as a you know that Indian pharmacopoeia is the pharmaceutical compendium of India, and in that we have the standard protocols for each and everything. We have monographs and all the information about the active pharmaceutical ingredients. Fine. So in IP also we use the metric system of measurement for weights and capacity. So मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है बेसिकली? दिस स्टैंडर्ड यूनिट इज़ 1 किलोग्राम, यू कैन से ग्राम. सो जब मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे वेट मेज़रमेंट की. तो वेट मेज़रमेंट की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले एक तराजू जैसी कोई चीज़ आएगी, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तब भी आपने देखा होगा कि वेट को मेज़र करने के लिए हम कोई तराजू का इस्तेमाल करते हैं. तो वैसे ही हमारे फार्मास्यूटिकल्स लैब में भी एक तराजू होता है, लेकिन जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल वेइंग बैलेंस. तो इस वेइंग बैलेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा बीच में एक फलक्रम है, और ऐसे इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके समझ सकते हैं. बीच में एक फलक्रम पॉइंट है एंड दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे 2 बैलेंसेस होते हैं. एक साइड पे हम वेट को रखते हैं, दूसरी साइड पे जो हमें कंपाउंड रखना है उसको रखेंगे और वे करेंगे. यहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको कहते हैं वेइंग बैलेंस. और यहाँ बीच में 0 डिनोट होना ज़रूरी है. 0 मीन्स द रेफरेंस पॉइंट. 0 इंडिकेट्स दैट बोथ द साइड्स आर इक्वली बैलेंस्ड, राइट. तो ये हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए और आप लोगों ने भी अपनी लैब में देखे होंगे. फाइन. सो अब इस वेइंग बैलेंस को यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें इसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी है और उसके लिए हमें पहले 0 सेट करना पड़ेगा, और उससे भी पहले हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी. अगर आप देखते हैं कि एनालिटिकल वेइंग बैलेंस में कोई भी डस्ट है या कुछ फॉरेन मटेरियल्स है या जो कोई भी चीज़ है, तो उसको आप पहले साफ़ करेंगे, प्रॉपरली साफ़ करेंगे टिश्यू पेपर से, एंड देन डस्ट और सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद हमेशा आप जब एनालिटिकल वेइंग बैलेंस से वे करेंगे तो बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे. बटर पेपर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वो नॉन ग्रेसी होता है और कोई भी कंपाउंड उसके ऊपर चिपकता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि वो वेट में भी बहुत हल्का होता है. तो उस वजह से हम बटर पेपर का यूज़ करेंगे कोई भी कंपाउंड को रखने के लिए. देन हमारे पास ऐसा एक आपको बॉक्स मिला होगा. अगर आप जब फार्मेसी के लैब में जाते हैं तो आपके पास एक वेट बॉक्स होगा. इस वेट बॉक्स का क्या काम होता है? ये वेट बॉक्स के अंदर डिफरेंट वेट्स के छोटे छोटे और
छोटे means up to 1 mg और 2 mg and then of bigger size like 100 ग्राम, तब तक के वेइंग बैलेंस दिए होते हैं, ठीक है। तो इस वेट में क्या होता है जनरली आप ये देखेंगे। सो फॉर डिस्पेंसिंग वी हैव इन ग्राम्स लाइक 1 ग्राम, 2 ग्राम के 2 होते हैं इसमें वेट, सो दैट हम इजीली 3 या 4 ग्राम को वे कर सके। 5 ग्राम का वे होता है, 10 ग्राम का वेट, 20 ग्राम्स के भी 2 होते हैं, एंड 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। सो दीज आर द वेट्स, राइट। और स्मॉल क्वांटिटी जब आपको वे करनी है उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो उसके लिए छोटे से वेट्स होते हैं और जनरली फ्लैट सरफेस वाले होते हैं। सो यूजुअली द साइज फ्रॉम 500 mg to 2 mg, दे आर ऑफ एल्यूमिनियम, दे आर फ्लैट, ये आपको याद रखना है, दे आर ऑफ एल्यूमिनियम, दे आर ऑफ फ्लैट, सर्कुलर एंड हैव टर्न्ड अप एज। टर्न्ड अप एज क्या होता है, तो आपका अगर ये आपका वेट है विच इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसकी एक सरफेस ऐसे टर्न्ड अप होगी, टर्न्ड अप, राइट। सो दैट आप ये जो फोर्सेप दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्सेप एक, तो उससे आप उसको उठा सकते हैं आसानी से, राइट। और ये वेट होते हैं 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20, 50, 100, 200 एंड 500 मिलीग्राम्स, इस वेट के वो होते हैं। इसके बाद हम आते हैं बिगर साइज ऑफ वेट्स, जिसमें हम कहेंगे कि साइज रेंज फ्रॉम 1 ग्राम टू 100 ग्राम्स एंड दे आर इंक्लूसिव ऑफ ब्रास। आपने देखा होगा कि आगे जो थे स्मॉल जो वेट्स थे 2 mg टू 500 mg वो एल्यूमिनियम के बने हुए थे, जबकि जो 1 ग्राम टू 100 ग्राम्स के होते हैं वो बने होते हैं ब्रास मेटल से, एंड दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, लार्ज एंड ईजी टू यूज़ एंड हैविंग अ ईजी टू यूज़ नोब एट द टॉप। So for bulk drugs usually we use this kind of large weights and which are having the capacity of 50 grams, 100 grams, 200 grams, 500 grams and 1000 grams. They are also of cylindrical shape, large and easy to use and having easy to use knob at the top. So what is this easy to use knob? तो जनरली ये जो वेट आपका होता है तो इस तरीके से होता है सिलेंड्रिकल शेप में, राइट। और इसके ऊपर एक ऐसा नॉब जैसा आपको दिखेगा जिससे आप ऐसे होल्ड कर सको, उसको पकड़ सकते हो ताकि ये उठाना आसान हो। एंड ऑल वेट्स फॉर यूज़, जितने भी हम फार्मास्यूटिकल्स लैब में जितने भी वेट्स यूज़ करते हैं दे मस्ट कैरी द गवर्नमेंट स्टैम्प। उसके ऊपर एक स्टैम्प होता है जो कि ये दर्शाता है कि ये इसकी एक्यूरेसी है वो वेरीफाइड है, और किससे वेरीफाइड है, तो स्पेसिफिक उसके लिए एक इंस्पेक्टर होता है जो ये वेट्स का मेजरमेंट को वेरीफाइड करता है, राइट। सो ऑल वेट्स फॉर यूज इन ट्रेड मस्ट कैरी अ गवर्नमेंट स्टेप विच इंडिकेट्स दैट इट इज़ वेरीफाइड बाय द authorized inspector of weights and measures. Now measurement of weights in metric system. So in metric system we already understood that a kilogram is standard unit for measurement of weight and other measures are derived from the standard unit. तो अब क्या derivation हो सकते हैं? As we know that 1 kg or you can say 1 kilogram is equal to 1000 grams and 1 hectogram is equal to 100 grams, 1 decagram is equal to 10 grams, 1 decigram is equal to 0.1 gram. So please यहाँ पे आपको confuse होने की ज़रूरत नहीं है। Decagram is equal to 10, deca 10, हेक्टो 100, एच से हेक्टो, एच से 100 ऐसे याद रखना है, डेका से 10 ग्राम एंड व्हेन यू हर्ड द नेम डेसी, डेसी इज़ फॉर डेसिमल, राइट। तो एक डेसिमल आप डाउन जाएंगे अगर 1 ग्राम से, इट मीन्स इट विल बी 0.1 ग्राम, 1/10, राइट। सो 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, 1 centigram is equal to 0.01 gram, it means 1/100, right. So this is in form of the divisions they have, right. 1 milligram is equal to 1/1000 means 0.001 gram, or you can say, and 1 microgram which is 1/1 mcg, 1 microgram is equal to 1 upon fine. So here you can see
it will be around 0.000001. 1 into 10 raised to minus 6, right? Microgram is equal to 1 into 10 raised to minus 6 grams. So you can also write it down like this, 0.000001 gram, and 1 gram is equal to 1000 milligrams. सो इस तरीके के जो कन्वर्जन्स है उसको हम नॉर्मली कैलकुलेशंस में यूज़ करते आते हैं. अब हम बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम्स की. तो जब भी हम वॉल्यूम को मेज़र करना है, मतलब कि हमारे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है, तो उसको मेज़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम्स के टर्म्स में कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी. और इसके लिए जो स्टैंडर्ड है एज़ पर द मेट्रिक सिस्टम इज़ लीटर. तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस हिसाब से कहते हैं. या अगर स्मॉल अमाउंट हो तो आप कहते हैं कि इतने ml दे दीजिए, 500 ml to 100 ml, राइट, जो दैट इज़ मिलीलीटर. तो अ लीटर इज़ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन मैट्रिक्स सिस्टम, and 1 liter is equal to 1000 ml, or you can say milliliters. Now यूज़ ऑफ इक्विवेलेंट्स. तो इक्विवेलेंट्स का यूज़ क्या है ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी, बिकॉज एज अ फार्मासिस्ट समटाइम्स वी रिक्वायर टू कन्वर्ट अ फॉर्मूला फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, राइट. जैसे अगर हमें कोई पुराना प्रिस्क्रिप्शन मिला है जो लेटिन टर्मिनोलॉजीज में है या एवोडिपॉय सिस्टम के अकॉर्डिंग है, एपोथिकरी सिस्टम के अकॉर्डिंग है, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मैट्रिक सिस्टम में, ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सके और एक डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर कर सके. और डोजेस फॉर्म भी बहुत तरीके के होते हैं. आपने डोजेस फॉर्म वाले यूनिट में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं. और लिक्विड डोजेस फॉर्म में भी सिंपल लिक्विड्स, मिक्सचर्स, एक्सटर्नल के लिए लोशंस, लिनिमेंट्स, ऑइंटमेंट्स, बहुत सारे होते हैं. तो इस सब डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए हमें काफ़ी बार इक्विवेलेंट्स का यूज़ करना पड़ता है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस इक्विवेलेंट्स. सो हियर इट इज़. मान के चलिए कि हम आज से 200 साल पिछले चले गए, तो उस टाइम पे हमें ग्रीक या लेटिन लैंग्वेज में कुछ लिखा मिला, वी हैव टू डिस्पेंस 15 मिनिम्स. अब हमें नहीं पता है कि 15 मिनिम्स क्या होता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन. 15 मिनिम्स इज इक्वल टू, अगर उसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट देखा जाए कैलकुलेशन करके अगर हम निकालेंगे, तो इन मैट्रिक सिस्टम द इक्विवेलेंट इज 0.924 ml. बट अगर उसको नॉर्मली हाउस होल्ड में जैसे लेना है, कि अगर किसी को घर में बताया जाए कि आपको 15 मिनिम लेना है, हाउ दे विल टेक, तो उसके लिए एक और सिस्टम भी हम साथ में लेके चलेंगे, विच इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट मेट्रिक सिस्टम. जहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उस टाइम पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे मेजरमेंट्स ले सकते हैं. तो उस टाइम पे आप राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे उसको, सो दैट अगर 15 मिनट्स को हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.924 इज़ राउंडेड टू 1 ml. 16.23 मिनिम्स इज़ एग्जैक्टली 1 ml. अगर हम एग्जैक्ट बात करें, एग्जैक्ट 1 ml मैट्रिक सिस्टम का, तो वो होगा 16.23 मिनिम्स, राइट. तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अप्रॉक्सीमेशन कितना किया गया है और एग्जैक्ट मैट्रिक इक्विवेलेंट क्या है उसका. नाउ 60 मिनिम्स इज इक्वल टू 4 ml, एंड एग्जैक्टली अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन इट इज़ 3.697, राइट. बट अगर आप घर पे किसी को बोलोगे कि 60 मिनिम्स लेना है, तो वो 3.697 ml नहीं ले पाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव माइक्रो पिपेट्स और अदर पिपेट्स लाइक देयर इन देयर होम, राइट. तो उसके लिए हमें ईजी होगा कि 4 ml लेना. 480 मिनिम्स इज इक्वल टू exactly it is 29.57 ml, while in approximation it is taken as 30 ml, right. 33.8148 fluid ounce is equal to 1 liter. तो जब भी आप अगर ऐसा लिखा होगा कोई प्रिपरेशन में कि आपको पेरेंट्रल कोई बनाना है सॉल्यूशन, उसमें 33.8148 फ्लूइड आउंस लेना है, अगर ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो उसको आपको समझना है कि वी हैव टू मेक 1 लीटर. तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए. 1/60 grains is equal to 1 milligram in approximate metric system, while exactly by the calculation it will be around 1.1 mg. 1 pound
is equal to 453.59 grams exactly, but we take by approximation it is around 454 gram. 1 gram. So these are the same equivalents you can learn also, you can remember also, and by practicing the डिस्पेंसिंग आप जितनी बार प्रैक्टिसिंग करोगे, जितना लैब में प्रैक्टिकल्स करोगे, तो आपको ये इजीली याद हो जाता है कि ये कन्वर्जन्स क्या है. सच दैट 1 ग्रेन इज इक्वल टू 64.79 mg as per the exact calculation, but approximately it is taken as 60 milligram, right. सो हमें इसमें सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है. जब आपको कैलकुलेशन आती हो और आपका मैथ्स अच्छा हो तो आप एक में से दूसरा डिराइव कर सकते हैं. हम बेसिकली 2-4 इसमें से हमें याद रखने की ज़रूरत होती है जिसको याद रखना ज़रूरी है. इन दैट एक ये है 437.5 ग्रेन्स इक्वल टू 1 आउंस, एंड 1 आउंस इज इक्वल टू इन ग्राम्स इट इज़ by exact calculation it is 28.3495 grams, while if it is, अगर हम इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 28 ग्राम. सेम अगर 1 kg की बात करें तो इन एपोथेकेरी आउंस, अकॉर्डिंग टू एपोथेकेरी सिस्टम इट इज़ 32.151 आउंस, राइट. एंड अगर हम एवोडिपोइस आउंस की बात करें तो 16 एवोडिपोइस आउंसेस इज इक्वल टू 450 ग्राम, राइट. नाउ टेबल्स फॉर हाउस होल्ड मेजर्स, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम एज अ फार्मासिस्ट हमें कैलकुलेशन आती है लेकिन पेशेंट को कैलकुलेशन आती हो ये ज़रूरी नहीं है. तो हमें उनको कैसे समझाना है, या जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 1 चम्मच मेडिसिन पीनी है, 2 चम्मच पीनी है, 1 बड़ी चम्मच पीनी है, टीस्पून फुल या टेबल स्पून फुल या डेजर्ट स्पून फुल, ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी होती है. तो हम अगर इसको इस तरीके से हमने मेजर्स को हाउस होल्ड टर्म्स में भी इसको डिराइव किया है कि एक ड्रॉप कितना होगा, एक टीस्पूनफुल कितना होगा, एक डेजर्ट स्पूनफुल कितना होगा, एक टेबल स्पूनफुल कितना होगा और एक टी कप फुल भी कितना होगा. मैट्रिक सिस्टम की अगर बात करें तो 1 मिनिम विच इज़ इक्वल इन एपोथेकेरी सिस्टम 1 मिनिम इज इक्वल टू 1 ड्रॉप ऑफ एनी लिक्विड, एंड दिस 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml इन मैट्रिक सिस्टम. नाउ 1 टीस्पूनफुल, अगर किसी को ये बोला गया है कि 1 टीस्पूनफुल आपको मेडिसिन लेनी है, इट मीन्स द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट इज 5 ml. यू कैन से 1 फ्लूइड ड्रैम, राइट. 1 डेजर्ट स्पूनफुल, एक बड़ा चम्मच जिससे हम डेजर्ट खाते हैं, तो उसमें आपको 8 ml क्वांटिटीज़ मिलती है अप्रॉक्सीमेटली, राइट, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम. और अगर अकॉर्डिंग टू एपोथेकेरी सिस्टम देखें तो we will take 2 fluid dram. 1 tablespoonful means एक उससे भी बड़ा चम्मच, डेजर्ट स्पूनफुल से जो और बड़ी क्वांटिटी का बड़ी उसका होता है, तो उसमें आपको 4 फ्लूइड ड्राम आते हैं, राइट. एंड इट इज़ इक्वल टू 15 ml. एंड फाइनली द 1 टी कप फुल, 1 टी कप फुल मतलब एक चाय का कप जो होता है उसमें कितना मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा, 120 ml. सो दीज आर द मेजरमेंट्स फॉर हाउस होल्ड्स. आपको जब घर में किसी पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं या आप खुद पेशेंट हैं तो इस तरीके से आप मेडिसिन लेते हैं तो उसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली. नाउ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग परसेंटेज सॉल्यूशंस एंड एलिगेशन. तो हमें सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी कि परसेंटेज क्या है. तो परसेंटेज रेट पर 100 हियर is convenient means of expression of the concentration of solute in solution or amount of potent drug in dosage form and this quantity of a ingredient in a mixture, right. So जब भी हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट में कितना परसेंटेज अमाउंट प्रेजेंट है वो चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, और ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज़ करेंगे. सो here you have to understand the percentage of solid in liquid usually expressed as percentage weight by volume. The percentage of solid in solid is usually expressed as percentage weight by weight. तो देखो यहाँ liquid है तो first of all solute आपका क्या है, solid, और solvent है liquid, तो solid वाला आगे आएगा percentage के बाद weight, and for liquid it is volume, so percentage weight by volume. और ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट
इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अगर सॉलिड इन सॉलिड ऐसा मिक्सचर कोई कर रहे हैं तो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा, एंड लिक्विड इन सॉलिड है तो ये सिस्टम को यूज़ करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, और जब लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर कर रहे हैं तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, राइट। और ये जितने भी है सिस्टम वो परसेंटेज में है, इट मीन्स द फाइनल वॉल्यूम और अमाउंट विल बी 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के हिसाब से निकलते हैं, राइट। नाउ द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एलिगेशन, जब भी हमें कैलकुलेशंस करनी हो जहाँ पे कोई मिक्सचर है जिसमें सेम कोई सब्सटेंस के दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रॉन्गर एंड वीकर, तो उसमें से हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालने के लिए हम एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, द एलिगेशन मेथड इज यूज्ड. This method is recommended for the purpose of checking the calculations, right? और ये इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जहाँ पे आप क्या करेंगे, सेम सब्सटेंस का जो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज है उसको यहाँ पे पुट करेंगे एंड वीकर परसेंटेज विल बी पुट ओवर हियर. बीच में आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज है और यहाँ पे आपको required percentage minus weaker percentage and here the stronger percentage minus required percentage. इसको जब हम प्रैक्टिकली एक सम के साथ करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस इक्वेशन को यूटिलाइज कैसे करना है. सो नाउ द सम इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल. यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन है दैट इज 95% अल्कोहल, राइट. इसमें से हमें वीकर सॉल्यूशन बनाना है जो कि है 70% अल्कोहल. कितना अमाउंट बनाना है 600 ml, राइट. तो यहाँ पे वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज 600 ml, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड इज 70% हमें बनाना है. और यूज़ क्या करेंगे हम, एलिगेशन मेथड, बिकॉज सेम है, अल्कोहल में से अल्कोहल का डाइल्यूशन करना है तो उस टाइम पे हमें करना है, राइट. सो 95% अल्कोहल, हियर द रिक्वायर्ड परसेंटेज 70 एंड डाइल्यूशन किससे होगा तो डेफिनेटली वाटर से होगा यहाँ पे. तो विकर इज 0. नाउ 95 माइनस 70, स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 25 एंड हियर द रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस द वीकर. सो 70 माइनस 0 इज 70, राइट. तो यहाँ पे हमें ये जो आपको अमाउंट मिल रहा है दे आर द पार्ट्स ऑफ दिस solvents. It means 70 parts of 95% alcohol and 25 parts of waters are required. So let's understand this here. So by alligation method we understood that 70 parts of 95% alcohol and 25 parts of water will produce the required percentage alcohol. And here the quantity of 95% alcohol required will be according to this formula, volume required 600 into 70 which is percentage required divided by percentage used, और आपको ये आंसर मिलेगा 442.10 ml. एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कैसे होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम रिक्वायर्ड 600 इंटू कितने पार्ट्स चाहिए थे 25 पार्ट्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड 95, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा. इस दोनों का सम करेंगे तो 600 ml होगा. और इस तरीके से आप एलिगेशन मेथड से डिफरेंट डाइल्यूशंस बना सकते हैं. थैंक यू.